बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ? आंसर, अर्थ इज inhabited by at least 10 million kinds of organism, but less than one third of these have been studied and catalogued by biologists। कैटालॉग का मतलब होता है पुट इन रिकॉर्ड, यानी जो 1/3 है वो रिकॉर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर 1, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 3, define biodiversity. Very important definition. The measure of the variety of organisms present in different ecosystems is called biodiversity. Bio mean life, diversity mean variety. It refers to variety within species and among species, meaning the term biodiversity has been derived from two terms: bio mean life, diversity mean variety. Question number 4, what do you mean by flora and fauna? Flora, the diversity of plants in particular region is called flora, and the diversity of animal in particular region is called fauna। यानी दुनिया में तमाम जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनको हम फाना बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे, और जितने भी दुनिया में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनको हम फाना बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट फैक्टर्स द फ्लोरा एंड फाना ऑफ रीजन डिपेंड? फ्लोरा एंड फाना इन ए रीजन डिपेंड ऑन climate, altitude, soils, presence of other species. Next question, question number 6. How biodiversity is distributed on Earth? Biodiversity is not distributed evenly on Earth. Tropics, it is richest in tropics. Temperate region also have many species. polar regions have fewer species। यानी इसके कहने का मतलब है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, हर इलाके में डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ बायोडाइवर्सिटी हैज़ इवॉल्व्ड? बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी इवॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 8, what do you know about the origin of life on earth? Origin of life is not well known to science, though limited evidences suggest that until 600 million years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms। Question number 9, describe the importance of biodiversity. Very important question. Biodiversity is important in many ways. Number 1, food. Biodiversity provides food for human। जाहिर सी बात है, जानवर हैं इतनी वैरायटी के, उनसे फूड हमें हासिल होती है। नंबर 2, drugs. A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources। Number 3, industrial material. A wide range of industrial material, for example, building material, fibers, dyes, resins, gums, adhesive, rubber, and oil are derived directly from plants। Number 4, maintenance of ecosystem. Biodiversity play an important role in making and maintain the ecosystem। Next, environmental benefits. It helps in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply। Recycling. Biodiversity is directly involved in recycling of nutrients and providing fertile soil। ये biodiversity की importance है। With headings. Question number 10. How many types of animal and plants are known to biologists?
Answer: over 1.5 million types of animal and 0.5 million types of plants are known to biologists. Next question है 11. Why does it become difficult to learn about the characteristics of each species? हर स्पीशीज की characteristics को लर्न करना बहुत मुश्किल है, क्यों? आंसर: लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी from small and simple bacteria to large and complex human beings. Number 2, some of them live in sea, other on land, some walk, other fly, and still other are stationary, यानी non-motile. Each has its own way of life, getting food, avoiding unfavorable environmental conditions, फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड. इस वजह से डाइवर्सिटी को क्लासीफाई करना मुश्किल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. ये आपने ब्रांचेस में भी पढ़ी है. प्लस वेयर एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. ऐसी सिस्टमैटिक्स ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी टच देते हैं, उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. नंबर 1, to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. Number 2, to find the evolutionary relationship among organisms. ये दो मकसद हैं क्लासिफिकेशन के. 14 question. What do you mean by taxa and taxonomic hierarchy? Very important. The group into which organisms are classified are called taxa. The singular taxa is taxon, यानी taxon singular है, taxa plural है. For example, largest taxon is kingdom. Taxonomic hierarchy क्या है? The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. ये जो taxonomic hierarchy है, लेट्स सपोज आगे हम एक क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फिर ये आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगी कि किसे कहते हैं हायरार्की. क्वेश्चन नंबर 15. इन विच स्पीशीज द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड? आंसर: द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीशीज रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिज्म हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर. ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, उनके अंदर हम इंटरब्रीडिंग क्राइटेरिया को मैयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 16. राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब देखिए बेटा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है. तो ह्यूमन की अगर देखें, टेक्सा ह्यूमन का क्या होता है? ह्यूमन. हम टैक्सा मालूम करने लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल, किंगडम, ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज होमोसेपियंस. ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है. क्वेश्चन नंबर 7. राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पी का किंगडम क्या है? प्लांटी, क्योंकि वो प्लांट है. फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फैबिल्स, फैमिली फैबेसी, जीनस पीसियम. और नीचे आपको लास्ट नज़र आ रहा है स्पीशीज पीसियम सैटिवम. क्वेश्चन नंबर 18. Define species. A group of organisms which can interbreed freely among themselves या among them and produce fertile offspring.
but are reproductively isolated from all other groups in nature are called species. देखें रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, लेट्स और एक बात इसमें ये याद रखिएगा कि सेम स्पीशीज़ के दरमियान हमेशा क्रॉसिंग होती है, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान क्रॉसिंग नहीं होती. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज़ म्यूल? It is in the definition of species, we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial condition, but in such unnatural crosses they produce an infertile offspring. इसकी एग्जाम्पल ऐसे है म्यूल, जैसे फीमेल हॉर्स और डंकी, मेल डंकी आपस में क्रॉस करते हैं तो उसके नतीजे में म्यूल पैदा होता है. एक क्रॉस बिटवीन ए मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग कॉल्ड म्यूल. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अरिस्टोटल इन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? Earliest known system of classification of organisms came from Greek philosopher Aristotle. He classified all the organisms known at that time in two groups, Plantae and Animalia. Question number 21. Describe contribution of following scientists for classification of living organism. कौन कौन से साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन मांग रहा है? इब्ने रुश्द, अगस्तस रिविनस एंड नंबर 3 एंड्रा कैसिलपिनो. नंबर 1 इब्ने रुश्द 1172. इब्ने रुश्द ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक दी एनिमा इन अरेबिक. इसका ये कंट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट साइंटिस्ट ही इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर. नेक्स्ट साइंटिस्ट ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा. वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय कैरोलस लीनियस? ही ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ही डिवाइडेड नेचर इनटू 3 kingdoms. Minerals, number 1 minerals, vegetables and animals. He used 5 rank in classification such as class, order, genus, species, varieties. Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. Linnaeus की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने कॉमन नेम को ख़त्म करके साइंटिफिक नेम दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. Who proposed 3 kingdom classification and what were the problems with 3 kingdom? Ernest Haeckel solved the first objection and presented 3 kingdom classification system. अब 3 kingdom classification प्रपोज किया अर्नेस्ट हैकल ने. इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या लगी? नंबर 1 ऑब्जेक्शन. दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है, इस सिस्टम से कोई डिफ्रेंशिएट इनमें नहीं हो सका. नेक्स्ट ऑब्जेक्शन. फंजाई वर स्टिल प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी. सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट the position of fungi in kingdom Plantae. Fungi resemble plants in many ways but are not autotroph. साइंटिस्ट ने कहा फंजाई तो ऑटोट्रॉफ है नहीं, ये तो हेट्रोट्रॉफ है, तो फिर इसको प्लांट में क्यों रखा? दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ एंड गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन. दे डू नॉट हैव सेलुलोज. प्लांट की सेल वाल में तो सेलुलोज होता है, लेकिन फंजाई के पास जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज नहीं होता. रेदर दे पोजेस काइटन, जबकि फंजाई की जो सेल वाल है उसमें काइटन होता है. तो फिर साइंटिस्ट ने ये ऑब्जेक्शन पेश की जिसकी वजह से 3 किंगडम सिस्टम रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ई कैटन या ई चैटन भी इसको पढ़ सकते हैं. इन 1937 ई कैटन सुजेस्ट द टर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट्स. Very important questions. Next question.
Question number 26. What is the basis of five kingdom classification system? Number 1, cellular organization. Number 2, mode of nutrition. Cellular organization. The level of cellular organization, i.e., that is prokaryotic, unicellular, eukaryotic, and eukaryotic multicellular. Mode of nutrition. Principal mode of nutrition is photosynthesis, absorption, and ingestion. ये mode of nutrition. Question number 27. How would you differentiate between organisms of kingdom fungi and animalia? यानी हमने फंजाई और एनिमल के दरमियान डिफरेंस बताना है. एनिमल्स हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल लैक सेल वॉल. एनिमल में सेल वॉल नहीं होती. एनिमल आर नॉट डीकम्पोजर. जबकि फंजाई क्या है? फंजाई हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फंजाई एब्जॉर्ब करके खाना खाती है. फंजाई कैनॉट कंटेन सेल वॉल कंपोज्ड अप ऑफ काइटिन. मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28. व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा? गिव एग्जांपल. किंगडम मोनेरा, it includes prokaryotic organism. They are made up of prokaryotic cells. Monarans are unicellular, although some types form chain, cluster, or colonies of cell. Most are heterotrophic, but some perform photosynthesis. For example, bacteria and cyanobacteria. Question number 29. Write down two characteristics of kingdom Protista. Kingdom Protista. Characteristics. Number 1. It includes eukaryotic unicellular and simple multicellular organisms. Next, these organisms may be photosynthetic or heterotrophic. Question number 30. Write two characteristics of kingdom fungi. Kingdom fungi. It includes eukaryotic multicellular heterotroph which are absorptive in their nutritional mode. Number 2, they live on organic material, secretes digestive enzymes, and absorb small organic molecule. Example, mushroom. Question number 31. Describe two characteristics of kingdom Plantae. It includes eukaryotic multicellular autotroph. They have multicellular sex organs and form embryos during their life cycle. Example, mosses, ferns, flowering plants are included in kingdom Plantae. 32 question. How can you divide five kingdom into two group on the basis of type of cells? Five kingdom system can be divided into two groups on the basis of types of cells in following ways. Number 1, kingdom Monera. Number 2, kingdom Protista. Kingdom Monera, organism with prokaryotic cell. Kingdom Protista, fungi, Plantae, animalia, organisms with eukaryotic cell. यानी टोटल 5 किंगडम्स हैं. तो 4 किंगडम जो है वो यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं और सिर्फ एक जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है. 33 क्वेश्चन. व्हाट आर प्रियॉन्स एंड वायराइड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Prions and viride are acellular form of organisms, but both of these particles cause infectious disease in certain plants. They are not included in five kingdom classification. Prions, they are composed up of only protein. Viride, they are composed up of circular RNA only. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34. क्लैरिफाई दैट वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग. वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. दे हैव बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग फीचर्स which distinguish their unique identity. Non-living feature. Due to their crystalline nature, they are considered as non-living. They are acellular. They do not have cellular organization.
एसेलुलर मतलब विदाउट सेल। लिविंग फीचर, दे कंटेन डीएनए और आरएनए नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट। इनके गिर्द प्रोटीन का कोट होता है, उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है। दे रिप्रोड्यूस बट ओनली इन लिविंग सेल्स। जब ये किसी सेल या किसी बॉडी के अंदर होते हैं तब रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे कॉज ए नंबर ऑफ डिजीज इन living cells. Conclusion, they are not considered as a organism and thus are not assigned any place in five kingdom system classification system. कहता है इन करेक्टरिस्टिक के बिना पे हम ये कह सकते हैं कि फाइव किंगडम सिस्टम में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब से ये अलग करेक्टरिस्टिक्स रखता है। डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इंट्रोडक्शन। Binomial nomenclature is the method of giving scientific names to living organisms. ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, उस सिस्टम को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। मीनिंग, बाइनोमियल मीन्स टू नेम्स। फॉर्मेट, एज द वर्ड बाइनोमियल suggest the scientific name of any living organisms consist of two names. The first is genus and second name is species. For example, scientific name of human being is Homo sapien. Homo जो है वो जीनस है, sapien species है। Next question, state any two rules for suggesting scientific names to living organisms. Rule बताने हैं। Rule number 1, scientific names are usually printed in italic such as Homo sapien. When handwritten, they are underlined. कहता है अगर आप इनको लिखें तो इटैलिक लैंग्वेज में, इटैलिक स्टाइल में लिखें। अगर इटैलिक स्टाइल में नहीं लिख सकते तो फिर आप इन दोनों नेम्स के नीचे अंडरलाइन इनको कर दें। बोथ नेम्स सेपरेटली अंडरलाइंड, यानी स्पीशीज़ के नीचे भी लाइन लगा दें और जीनस के नीचे भी लाइन लगा दें। नेक्स्ट, फर्स्ट नेम जीनस नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, जबकि स्पीशीज़ नेम को हमेशा छोटे लेटर से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद कॉमन नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, ए फिश इज ए वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स, बट सेवरल कॉमन नेम्स डू नॉट फिट ए बायोलॉजिस्ट्स डेफिनेशन ऑफ फिश लाइक सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश। अब ये सब के साथ फ़िश लगा हुआ है क्योंकि ये पानी में रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये फ़िश हैं, क्योंकि इनके अंदर बायोलॉजी के मुताबिक जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है यानी वर्टिब्रल कॉलम है वो फ़िश है, ठीक है। और जिसके अंदर नहीं है वो बेशक पानी में रहे, हम उसको फ़िश नहीं कह सकते। ये जो इसे सिल्वर फिश, क्रे फिश कहा गया है, ये कॉमन नेम है, तो इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राइट डाउन साइंटिफिक नेम्स of following: ऑनियन, स्टारफिश, हाउस क्रो, ऑर्चिड ट्री। ऑनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा, स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है एस्ट्रस रूबेंस, हाउस क्रो क्रोवस स्प्लेंडेंस, ऑर्चिड ट्री ब्यूनिया वेरीगेट। वेरी इंपॉर्टेंट ये साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है तबाहकुन। इन एन इकोसिस्टम ए स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज़ डाइड इन इकोसिस्टम। ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हों, ख़त्म हो चुकी हों, फना हो चुकी हों, उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। What are the endangered species? Give example. A species is called endangered when it is at risk of extinction in near future. ऐसी species जिसको ख़त्म हो जाने का खतरा हो उसे हम endangered species कहते हैं। N का मतलब होता है in, danger, danger। ऐसी species जो danger में हैं ख़त्म होने के। For example, Indus dolphin, Marco Polo sheep, Hobara bustard। 41 question. Write a short note on Eucalyptus plant. Eucalyptus plant are imported from Australia and introduced in Pakistan. These plants consume more water and have distributed the water table level of underground water.
इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्री। इसके गिर्द जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं ये उनको नुकसान पहुंचाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी? Effect of deforestation. Deforestation affects the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there are no tree to keep soil in place, there are more chance of soil erosion. अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो सॉइल इरोजन हो जाएगी। सॉइल इरोजन हो जाएगी तो कोई ट्री नहीं नज़र आएगा आपको। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स are washed out of soil, river become choked up with mud and silt which can cause floods, जिसकी वजह से सैलाब आएंगे। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन्स, इससे रेन भी कम हो जाएगी और प्लस हैबिटेट लॉस हो जाएगी। जो जानवर छुपे होते हैं अपने घर बना के दरख्तों के अंदर, तो वो भी बेचारे एक्सपोज हो जाएंगे और उनकी स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, उनके प्रीडेटर उनको खा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओवर हंटिंग इन एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन में ओवर हंटिंग का क्या रोल है? ओवर हंटिंग हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज एंड द एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज वेल, इबेक्स, इबेक्स कहते हैं गोट को, उड़ियाल, मारखोर। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड मारखोर। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज प्रिंसिपल थ्रेट। कहते हैं हंटिंग चाहे आप कानूनी तौर पे करें या गैर कानूनी तौर पे, दोनों ही स्पीशीज़ के लिए नुकसानदेह हैं। 44 क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान? कॉजेज, नंबर 1 लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन population, prevailing poverty in rural areas, low literacy rate. Next question, which organization are working for conservation of biodiversity? Very important question. Following organizations are working for conservation of biodiversity in Pakistan. Number 1 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, यानी इसका सिर्फ ऐसे ही नाम याद रख लें, IUCN। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। IUCN की एब्रीवेशन, WWFP की एब्रीवेशन MCQs में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has prepared first red list of Pakistan? IUCN has prepared the first red list of Pakistan. Next question, write names of animals to which northern area provide habitat. कौन कौन से एनिमल है जिनको नॉर्थन एरिया हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है? नंबर 1 मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, एस्टोर मार्खोर, हिमालयन इबेक्स, वूली फ्लाइंग स्क्वेरल एंड ब्राउन बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर किल्ड ईच ईयर? ऑलमोस्ट इसका आंसर है 2 lakhs ऑफ द 1 millionth माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू चित्राल आर किल्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट herders do with bear cubs? Herders captures the bear cubs and sell them to the trainers who train them and sell them to the foreigner. Next question, write a short note on Hubara bustard. This bird flies to Pakistan in winter season from former Soviet territory and settle in Cholistan and Thar desert. The decline in its population is due to the hunting by foreigners and destruction of its habitat. नेम दी नेशनल एनिमल एंड बर्ड ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एनिमल मारखोर है पाकिस्तान का और नेशनल बर्ड चकोर पैट्रिज इसको हम कहते हैं। ये था हमारे बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये नोट्स तैयार कर लें।
इसमें से ही पंजाब जो बुक है, पंजाब बुक बोर्ड, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला 4th चैप्टर के साथ नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।